Good morning, students. Today I am going to tell you about quantum model of an atom. ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਹਰਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਲਾਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਆਂਟਮ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਰਲੀ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈ ਅਪੋਨ ਕਰਲੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ। ਮੀਨਸ ਸਾਈ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਈ ਦਾ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਈ ਦਾ ਜੈਡ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਮੀਨਸ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੋ ਸਾਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਚ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਚ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 2+3 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਸਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਰ ਲਗਾਈਏ, ਉਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਈਗਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਬਿਟਲ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਈ ਸਕੇਅਰ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਮਾਡਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 90 to 95% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਗੀ। ਓਨੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਆਰਬਿਟਲਸ।
ਜਿਹੜੇ ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स मीनस अलग अलग तरह का एरिया एग्जिस्ट करता जिथे इलैक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। वो शेप्स आप करांगे अगे। तो इस पूरे मॉडल के बेसिस से अपने को 4 क्वांटम नंबर्स भी आए, एक तो ऑर्बिटल आया, एक 4 क्वांटम नंबर्स आए। इस मॉडल ने 4 क्वांटम नंबर्स दिते। क्वांटम नंबर्स इलैक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का एक तरह का एड्रैस है। जिस तरह अपने घर का कोई ना कोई एड्रैस होंगे, ठीक है, पिंड का नाम है, डिस्ट्रिक्ट ए है, तहसील ए है, सेम ही इलैक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का भी एड्रैस है। तो एड्रैस फाइंड आउट किया जाता है क्वांटम नंबर्स के बेसिस से। क्वांटम थ्योरी ने क्वांटम नंबर्स दिते जिन्होंने पढ़ के आप किसी भी इलैक्ट्रॉन बारे दस सकते हैं एग्जैक्टली कि इलैक्ट्रॉन इस शैल दे विच है, इस ऑर्बिटल दे विच है, ठीक है जी। तो यदा जिहड़ा बेसिक पॉइंट है जिहड़ा इत्थे यूज़ किया जाएगा वो मैं सिंपली एक डायग्राम दे विच तुहानूं दस दिना है। न्यूक्लियस है, ये अराउंड शैल या ऑर्बिट बने होंगे ने। की चीज़ां ने? शैल और ऑर्बिट। ये अगे सब शैल होणगे, ये की होणगे अगे सब शैल, उहदे अगे ऑर्बिटल्स होणगे, उहदे अगे की होणगे ऑर्बिटल्स। उत्थे इलैक्ट्रॉन अगे स्पिन करता होएगा, उत्थे की करता होएगा इलैक्ट्रॉन स्पिन करता होएगा। मीनस 4 चीज़ां ये जरूरी ने पढ़निया, 4 टर्म्स ने जिहड़ियां आपां इंपोर्टेंट समझते हैं पढ़निया। किहड़ा शैल है जिथे इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता, उहदे विच किहड़ा सब शैल है, उहदे विच अगे ऑर्बिटल किहड़ा है, उत्थे इलैक्ट्रॉन स्पिन करता है। स्पिन भी 2 तरह की है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इट मीनस 4 टर्म्स अपने लिए जरूरी ने। जिहड़ा पहला क्वांटम नंबर है दैट इज़ प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। ये आपां नूं की दसेगा? प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। प्रिंसीपल क्वांटम नंबर नूं आपां एन नाल लिखते हैं। प्रिंसीपल क्वांटम नंबर आपां नूं दसेगा कि इलैक्ट्रॉन किहड़े शैल या किहड़े ऑर्बिट दे विच प्रेजेंट है। एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो एन की वैल्यू बियॉन्ड तो जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है। मीनस जो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर है इनू पढ़ के आप दस सकते हैं कि इलैक्ट्रॉन आप जो भी इलैक्ट्रॉन वास्ते स्टडी करनी है वो इलैक्ट्रॉन किहड़े शैल दे विच रिवॉल्व करता है। सैकेंड वन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर नूं आपां एल दे नाल डिनोट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये आपां नूं दसेगा कि इलैक्ट्रॉन अगे किहड़े सब शैल दे विच रिवॉल्व करता है। सब शैल की गिनती बारे दसेगा, सब शैल बारे दसेगा। जिहड़ी एल की वैल्यू है वो एन तो 1 घट होएगी हमेशा। फॉर एग्जाम्पल एन की वैल्यू 2 है तो एल दियां किहड़ियां वैल्यूज होणगियां 0, 1 एंड 1। अगर एन की वैल्यू अपने को 3 आ गई तो एल दियां वैल्यूज 0, 1 एंड 2 ये एग्जिस्ट करनगियां। सो जिहड़ियां एल दियां वैल्यूज ने वो एन तो 1 घट आउणगियां। रख लो एल विच इज़ लैस दैन 1, ठीक है जी। एन तो 1 लैस होएगी एल की वैल्यू। सपोज करो तुहाडे कोले एन की वैल्यू की है 1 है तो एल की वैल्यू की होएगी 0। अगर एल की वैल्यू 0 है इनू आपां बोलांगे एस सब शैल, ठीक है जी। अगर एल की वैल्यू 1 आ गई इनू आपां बोलांगे पी सब शैल। अगर एल की वैल्यू 3 आ गई इनू आपां बोलांगे डी सब शैल। अगर एल की वैल्यू 4 आ गई तो इनू आपां बोलांगे एफ सब शैल, ठीक है जी। एस का मतलब है शार्प, पी का मतलब है प्रिंसीपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ मीनस फंडामेंटल। तो ये एल दियां वैल्यूज़ तो उन्होंने नाम आ गए। 4 तरह दी वैल्यूज़ एल दियां एग्जिस्ट कर सकदियां ने 0, 1, 2 एंड 0, 1, 2 एंड 3। अगर 0 है तो एस सब शैल है, अगर 1 है तो पी सब शैल है, अगर 2 है तो डी सब शैल है, अगर 3 है तो एफ सब शैल है। तो इदा 4 तरह के सब शैल एग्जिस्ट करते हैं। तो 4 के विचों किते भी इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता। हुण आपां देखते हैं कल्ले कल्ले सब शैल दे विच किन्ने किन्ने ऑर्बिटल्स ने। थर्ड वन की है मैग्नैटिक क्वांटम नंबर, जिन्हों आप लिखते हैं एम एल के नाल। एम एल दियां वैल्यूज़ माइनस एल तो लैके प्लस एल तक वेरी करदियां ने। सपोज करो एल की वैल्यू तुहाडे कोले 1 है
तो एम एल दी तीन वैल्यूज़ होणगियां -1 0 एंड 1। इट मीनस एल की वैल्यू 1 किहड़ा सबशैल है पी सबशैल। पी सबशैल दे विच अगे तीन ऑर्बिटल्स होणगे किहड़े किहड़े पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। अगर एल की वैल्यू 0 आ गई तो एम एल दी वैल्यूज़ की होणगियां कल्ली 0 आऊगी। इट मीनस एस सबशैल दे विच एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है जी। अगे आप एल की वैल्यू अगर 2 कर दीए इफ एल इज इक्वल टू 2 इफ एल इज इक्वल टू 2 दैन एम एल की होएगी -2 -1 0 1 2। सो आप बोल सकते हैं अगर अपने को एल की वैल्यू 2 है यानी कि डी सबशैल है तो वो अगे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ने किहड़े किहड़े डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्केयर -वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर। ठीक है जी। अगर एल की वैल्यू 3 है मीनस एफ सबशैल है तो किहड़ियां वैल्यूज़ होणगियां -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 कितनियां हो गई टोटल 7। एफ एक्स 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 एफ वाई 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 एवें करके 7 वैल्यूज़ ने टोटल। मीनस एफ सबशैल दे विच अगे 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंदे ने। सो एस दे विच एक ऑर्बिटल होएगा पी दे विच 3 ऑर्बिटल्स होणगे डी दे विच 5 एंड एफ दे विच 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंदे ने। सो प्रिंसीपल क्वांटम नंबर आपां नूं शैल बारे दसदा है एजीमुथल क्वांटम नंबर आपां नूं सबशैल बारे दसेगा मैग्नैटिक क्वांटम नंबर आपां नूं अगे ऑर्बिटल्स बारे दसेगा। लास्ट क्वांटम नंबर रह गया विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ वन विच इज़ स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ रिटन बाय एम एस। देखो एम एस दियाँ 2 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करदियां ने एक +हाफ और एक -हाफ। जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है अगर एक ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करदा जां तां ओह क्लॉकवाइज रिवॉल्व करदा है जां ओह एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर सकदा। अगर इलैक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करदा है तो एम एस की वैल्यू +हाफ लिख दो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ लिख दो। क्लीयर। तो ये नाल दे तुहानूं न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं जां इहदे नाल दा क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है। ठीक है जी। क्वेश्चन किदां दा कि क्वांटम नंबर्स नूं डिफाइन करो जां एजीमुथल क्वांटम नंबर नूं डिफाइन करो मैग्नैटिक क्वांटम नंबर नूं डिफाइन करो जां मैग्नैटिक क्वांटम नंबर आपां नूं की दसेगा जां न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स ने मैं दोबारा दस देना। फर्स्ट है प्रिंसीपल क्वांटम नंबर जिहड़ा आपां नूं शैल्स बारे जां ऑर्बिट्स बारे दसदा है। सैकेंड हैगा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिहड़ा आपां नूं सबशैल्स बारे दसदा है। थर्ड वन इज़ मैग्नैटिक क्वांटम नंबर जिहड़ा आपां नूं अगे ऑर्बिटल्स बारे दसदा है। फोर्थ वन हैगा स्पिन क्वांटम नंबर जिहड़ा आपां नूं अगे स्पिन ऑफ एन इलैक्ट्रॉन बारे दसदा है। ठीक है जी। इलैक्ट्रॉन की 2 तरह की +हाफ और -हाफ स्पिन होंदी है। अगर इलैक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो +हाफ है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -हाफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी। नाउ तो अज का टॉपिक सिर्फ इन्ना की सीगा अपना ये लास्ट टॉपिक ही है वैसे तो इस तो बाद थोड़ा जिहा पोर्शन रहिंदा है कि इलैक्ट्रॉन किद्दां डिस्ट्रीब्यूट ने ऑर्बिटल्स दे विच अगे इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानी कि तो आप कल डिस्कस करांगे। लास्ट लैक्चर रह गया एक जिहदे विच लास्ट टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। सो कल नूं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना है। इत्थे तक जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम लगदी हुई तो मेरे नाल डिस्कस कर लवे मैनूं दस दे मैं समझा दूँगा तुहानूं मैनूं कमेंट करके दस दिया करो। एंड अगर वीडियो चंगी लगी है तुहानूं तो अगे जरूर इनू शेयर करना है उन्होंने स्टूडेंट्स के जिहड़े कि साइंस स्टूडेंट्स ने। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लैक्चर के।